मगर एक व्यक्ति था, उसका नाम बॉल्डविन है। A man whose name was Baldwin. उसको कैंसर हुआ, लास्ट स्टेज कैंसर। He was diagnosed with last stage cancer. कुछ महीने थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। He was given some months. He was in the hospital. उसके माता पिता प्रभु को मानते थे, मगर उसने अपना पूरा जीवन प्रभु से दूर बिताया। His parents believed in the Lord, but he lived all his life और अब away उसको from God. पता था कि मेरा समय आ गया है और मैं जो मेरा बनाने वाला है उससे मेरी मीटिंग होने वाली है। And now he knew that it is his time and he has to meet his maker. सो उसने अपने दोस्त को कहा कि एक बाइबल मुझे लाके दे कि मेरे आखिरी के जो ये महीने हैं उसमें मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। So he told his friend, get me a Bible so I can get to know God in these last months before I meet him. तो उसने कहा मेरी ये इच्छा है कि मरने से पहले मैं जेनेसिस से रेवलेशन तक पढूं पूरा। And he said, it's my desire to read from Genesis to Revelation before I उसके die. दोस्त ने कहा नहीं नहीं, जेनेसिस से शुरू मत कर, तू मर जाएगा आधे में, तू मैथ्यू से शुरू कर। His friend said, no, don't start from Genesis. You'll die halfway through it. Start from Matthew. उसने कहा नहीं, He said, no. उसने कहा खुदा मुझे जीवित He रखेगा। said, God will preserve me. He started from Genesis. उसने पढ़ना शुरू किया उत्पत्ति से। जेनेसिस उत्पत्ति। पढ़ता गया, आगे Kept जाता on गया, reading, जाता kept गया, reading. फिर जेरेमाया की पुस्तक में आया। He came to the book of Jeremiah. और जेरेमाया की पुस्तक पढ़ते पढ़ते उस वचन में आया And he came to the place in the book of Jeremiah where the Bible says, is there no word of the Lord for me? जहां बाइबल कहती है कि यिर्मयाह कहता है, क्या मेरे पास प्रभु की ओर से कोई वचन नहीं है? And that verse stood out from the Bible and touched him. और वो वचन बाइबल से उठकर आया उसके सामने, उसको छू लिया। And he knelt down and he started to pray and he said, God, और वो is घुटनों there पर no आया। word of God for me? वो घुटनों पर आया, प्रार्थना करने लगा कि आप प्रभु मेरे लिए कोई वचन नहीं है तेरे पास। And he heard God's voice and God said, get up and go out of your hospital. और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने कहा उठ और अस्पताल से बाहर जा। And he went out. वो बाहर गया। He said, go to where the parking is. परमेश्वर ने कहा पार्क He went कीजिए, there. वो वहां गए। And as he was standing there, जब वो वहां खड़े थे, a car passed by, एक गाड़ी आई, a man stopped एक आदमी रुका, and said, I have a word from God for you. कहा मेरे पास परमेश्वर की ओर से वचन है तेरे लिए। And the word for you is और वो वचन ये है, Isaiah 53:5, यशायाह by 53:5, his stripes you are healed. उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। Now hear this. सुनिए, That's the good part. ये अच्छी खबर है। Everybody will get excited, all of us. हर कोई यहाँ पे उत्साहित हो जाता है। Now comes the real testing part. अब उसकी परीक्षा का समय Hear आता है। this. Your faith will be tested. आपका विश्वास परखा जाएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? वहां पर कई लोग गिव अप कर देते हैं। That is where many people give up. It will be tested. वो विश्वास परखा जाएगा। The tempter, the tester, which is the devil, will come. जो परखने वाला है, परीक्षा लेने वाला शैतान वो आएगा। The people who have shallow faith, they won't stand. जिन लोगों का विश्वास गहरा नहीं है वो नहीं टिक पाएंगे। Okay, so he came back. वो वो वापस आया। अस्पताल वापस आया। He came back to the hospital. खुश हो गया है। He was happy. Isaiah 53:5. यशायाह 53:5। Can you put Isaiah 53:5? Right? But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. And by his stripes we are healed. वो हमारे अपराधों के कारण कुछ घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े And this guy, he said, instead of we, he started saying, I are healed. और उसने कहना शुरू किया कि मैं चंगा हो गया हूँ। His friend said, that's wrong grammar. He said, I know that. उसके दोस्त ने कहा ये गलत ग्रामर है, मैं चंगे हो गए हैं, He kept saying that. पर वो कहता है। Okay? Now hear this. सुनिए, His reports came उसकी रिपोर्ट आई and the cancer has spread even more. और कैंसर और ज्यादा फैल गया था। ये वो समय है This is जब the time लोग गिव अप कर देते हैं। when people give up. क्योंकि बाइबल कहती है तुम किसकी रिपोर्ट पर भरोसा करोगे? Because the Bible says, whose report will you believe? क्योंकि परमेश्वर की भी रिपोर्ट है और अस्पताल की भी रिपोर्ट है। और परमेश्वर की रिपोर्ट कह रही है तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। अस्पताल की रिपोर्ट कह रही है तू 1 महीने में मर जाएगा। जिसकी रिपोर्ट पर विश्वास करोगे वही आपके साथ होगा। Because God has a report for you and the hospital has a report for you, and whosoever's report you will believe, that is what will happen to you. Okay? But he said no. He can. Bible says
hold on to your confession of faith. बाइबल कहते हैं अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो. क्यों थामे रहे? Why should we क्योंकि keep भाई holding कोई on? चुराना चाहता है आपका मुंह का अंगीकार. Because there is someone who wants to steal the confession of your So mouth. डॉक्टर बार बार बोल रहे उसको, भाई तो क्या फालतू की बात. वो कह रहे नहीं, मैं चंगा हो चुका हूं. अपने दोस्त को बोलता है मैं हो चुका हूं. The doctors kept on saying, what are you saying? He फिर said, "No, I'm रिपोर्ट healed." आई. Again the report came. क्या आया? What happened? कैंसर और लिम्फ नोड्स के साथ पूरे शरीर में फैल गया. Cancer spread into his entire body. डॉक्टर ने कहा आप कुछ ही दिन है तेरे पास. Doctor said, now you have a few days. वो कह रहा कुछ भी बोलो. He said, whatever, say whatever I you want. are healed. मैं हो चुका हूँ मैं भैया, चंगा चंगा हो चुका हूँ मैं. Kept on मेरे saying, खुदा I'm ने healed. बोल दिया है, My God मैंने has said भरोसा it. कर दिया I है, have खत्म believed बात. it. The matter is over. And he took discharge from the hospital, came out. उसने छुट्टी ली, अस्पताल से बाहर आ गया. डॉक्टर ने कहा था तुम मर जाएगा. Doctor said, एक महीना हुआ, 1 month, 2 महीना, 2 months 3 passed by, महीना, 3 months 5 passed by, महीना, 5 months, 6 महीना. 6 भाई months. बंदा मर ही नहीं रहा है तो अच्छा हो रहा है. He wasn't dying, he was getting healthier. उसके बाद डॉक्टर पे गया, Then went to the doctor, रिपोर्ट कराई. got his reports. रिपोर्ट में आया नो कैंसर फाउंड, कोई कैंसर नहीं है. आज वो व्यक्ति एक पास्टर है, खुदा की सेवा कर रहा है, आज भी जिंदा है. Today he's a pastor serving the Lord, is alive today. जिस वचन के द्वारा परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को बना सकता है, उस वचन के द्वारा वो आपकी मरी हुई किडनी को जिंदा कर सकता है, आपके कैंसर को नाश कर सकता है, एक नया अंग आपको दे सकता है. The same word by which God created the entire creation, He can recreate your organs that are dead. He can heal your cancer. He can recreate a body organ. ओके, आपके ऊपर है It depends on you. कि आप किसकी रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं. That whose report are you going to believe on?